seated. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا اس سارے پیار کے لیے. آئیے ایک لمحے کے لیے ہم سارے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور مل کر خدا کی شکر گزاری کریں. وہ بھلا ہے. اگلے 30 سے 35 منٹ کے لیے اپنے دل کو کھول لیجئے گا خدا کے کلام کے لیے. The Lord is here. خداوند یہاں پر موجود ہے. خداوند یہاں پر موجود ہے. خداوند آسمانی باپ، میرا دل تیری پاک حضوری میں تیری شکر گزاری سے بھرا ہے. تو اپنے لوگوں کے درمیان اپنے کال کے موافق موجود ہے اور ہم تمام سے مجھ سمیت تو کلام کرنے کو ہے. اے باپ آسمانی، میں اس خوبصورت کانگریگیشن کے لیے اپنے محترم ہم خدمت بھائی، ساتھی، پارٹنر اور خداوند دوست کے لیے پاسٹر ہنری صاحب کے لیے دل سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں. اور خداوند اس خوبصورت خدمت کو دیکھ کر یقیناً میرا دل تیری شادمانی سے بھرا ہوا ہے. خداوند ساری ٹیم پر، سارے چرچ پر، چرچ کے ایک ایک نوجوان بھائی بہن بزرگ پر جنہوں نے کسی بھی طور سے خداوند اس کانگریگیشن کو پروان چڑھانے میں اپنی محنت، اپنے آنسوں اور دعاؤں کے بیج بوئے ہیں، ان تمام کے لیے میں تیری برکت کو چاہتا ہوں. اور آج خداوند تو ہم سب کو دنیا کے مختلف حصوں سے یہاں جمع کیے ہوئے ہے، اس بات کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں. باپ اب تو فرما، تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیری سنتے ہیں. یسوع مسیح کے نام میں سب مل کر کہیں گے آمین. زوردار تالیاں یسوع کے لیے بجائیں، وہ یہاں پر موجود ہے. ہاللویا. یہ روایتی بات لگتی ہے لیکن یہ بہت سچ بات ہے. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے بھائی کے لیے، پاسٹر ہنری کے لیے. یہ عمر والی بات کرتے ہیں، پادری صاحب اپنی نام بتائیں تو کسی کو نہیں پتا چلے گا. ہی لکس سو ینگ. اسی دو میں کٹھے کھلو جائیے، مے بی کہ میں ان سے بڑا لگوں. بٹ ہی از اے ویری جنرس ہارٹیڈ، ویری کائنڈ مین. پاکستان میں بھی ہماری چند دفعہ ملاقات رہی، یہاں دبئی میں بھی. اور میرا دل ہمیشہ ان سے مل کر خدا کی شکر، اور اپنی بہن کے لیے بھی میں بہت شکر گزار ہوں. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ کس طرح سے چرچ گرو کر رہا ہے اور ان دا پریکٹیکل ویز آپ کتنا کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں مسیح کے بدن کے لیے. آئیے بائبل مقدس کو میرے ساتھ کھولیے گا. اگر آپ کے پاس بائبل ہے، یوحنا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 8واں باب 31ویں اور 32ویں 2 آیات مبارک ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے. پاسٹر ہنری نے ابھی بتایا کہ کل پاکستان کا جشن آزادی ہے اور پرسوں انڈیا کا، تو میرے دل کے اندر یہ آیت تھی اور میں نے کہا کیوں نہ آج اسی پر تھوڑی دیر کے لیے ہم بات کریں. نئے عہد نامہ یا عہد جدید میں سے یوحنا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 8واں باب 31ویں اور 32ویں 2 آیات ہم خدا کے کلام میں سے پڑھنے کو ہے. لکھا ہے، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا، اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے برکت کا سبب ہو. 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کو ہوں: ایمان، سچائی اور اس کے بعد آزاد ہونا. یہ ترتیب میری بنائی ہوئی نہیں، بلکہ جو قول مسیح کی زبان مبارک سے نکلا، یہ ترتیب اسی سے مجھے دریافت ہوئی. اسے کہا ایمان لانے والوں کے لیے جو سچائی سے واقف ہیں وہ آزاد کیے جاتے ہیں. جو ایمان لے کر آتے ہیں، جو سچائی سے واقف ہوتے ہیں، وہ آزاد کیے جاتے ہیں. یعنی کہ یہ جو روحانی آزادی ہے، اسپرچول فریڈم، یہ بنا ایمان کے ممکن ہی نہیں ہے. None of us can get free or live a free Christian life without believing and having faith on Christ. یسوع پر ایمان لائے بغیر، یسوع میں پیوست ہوئے بغیر آزاد روحانی زندگی گزارنا امپاسبل ہے. جب تک کوئی شخص یسوع مسیح میں انروٹڈ نہ ہو، اس کی جڑیں، اس کی شاخیں، وہ پورا تن اس کے اندر
पेवस्त ना हो जाए, गहरा खुबा हुआ ना हो, इट्स इम्पॉसिबल टू बेयर फ्रूट। हम बात आज चर्च जाने वाले क्रिश्चियंस की नहीं कर रहे, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो यीशु पर ईमान रखते, सच्चाई से वाकिफ हैं। आज कई सारे लोग चर्च जाते हैं, सच्चाई से वाकिफ नहीं। कई सारे लोग रोजा रखते, दुआ करते, सच्चाई से वाकिफ नहीं। कई सारे लोग रियासतें करते हैं रूहानी या मजहबी और समझते हैं कि वी कैन प्लीज गॉड विद इट। नहीं, कोई कर नहीं सकता। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सच्चाई से वाकिफ हैं। सच्चाई हमारे लिए डॉक्टर्स की रिपोर्ट नहीं है, हमारे लिए, आपकी और मेरी बात कर रहा हूं, हमारे लिए सच्चाई साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे लिए सच्चाई किसी दरख्त का नाम नहीं है जिसमें से जड़ी बूटी निकलती हो। हमारे लिए सच्चाई एक शख्स है, उसका नाम यीशु है। उस शख्स से हमारी वाकफियत है। वी नो द ट्रुथ, वी डू नॉट ओनली हेयर अबाउट द ट्रुथ। हम खाली सच्चाई के बारे में सुनते नहीं, हम सच्चाई से वाकिफ हैं। वी नो हिम, वो शख्स है, उसकी जात है, उसका नाम यीशु है। और उसके बारे में बाइबल कहती है कि जो कोई उसे जान लेता है, उसमें पेवस्त हो जाता है, वो आजाद हो जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि सारी बातों की जो शुरुआत है वो ईमान से हो रही है, ईमान से होती है। ईमान का उलट किसी ने सवाल किया कि क्या है, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ बिलीव? तो जवाब मिला, द ऑपोजिट ऑफ बिलीव इज अनबिलीव। ईमानदारी का उलट बेईमानी है। मैंने कहा भाई तो गलत बोलता है। बाइबल की रूह से ईमान का उलट बेईमानी नहीं है, हो ही नहीं सकता। बाइबल की रूह से ईमान का उलट गलत चीजों पर ईमान है। उसने कहा यह कैसे मुमकिन है? मैंने कहा सुनिए, दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई ईमान है, कुछ ना कुछ ईमान है। किसी का ईमान है एक बड़ा धमाका हुआ था और दुनिया वजूद में आ गई। इंसान पहले बंदर था। मैंने कहा मैं अमेरिका में था रिसेंटली और वहां पर चुके किसी खुदा को ना मानने वाले बहुत सारे हैं। तो उन्होंने कहा आई बिलीव दैट देयर वाज एन एक्सप्लोजन एंड द मैनकाइंड बिगिन फ्रॉम देयर इन द फॉर्म ऑफ एप्स। बंदर की शक्ल, बंदरों के तौर पर इंसान भरपा हो गए, ना पैदा हुए ना बनाए गए, भरपा हो गए कहीं से उस धमाके से। मैंने कहा तेरे माँ बाप ही, तेरे दादा दादी बंदर हो सकते हैं, मेरे नहीं है। आई कांट बिलीव दैट। मैं बंदा हूं, आदमी हूं, इंसान हूं। मैं तो कबूल नहीं करता कि मेरे परदादा या उसके परदादा बंदर थे और मैं बंदरों की नस्ल में से यहां पर हूं। आई कांट बिलीव दैट। हर किसी का ईमान है, हर किसी का उसका ईमान उस एक्सप्लोजन पर है। किसी का ईमान पत्थर पर है, किसी का ईमान चुनियों में कैद है, किसी का ईमान दियों में कैद है, किसी का ईमान कैंडल्स में कैद है। हर किसी का किसी ना किसी तरीके से ईमान है। कई लोग लोगों पर ईमान रखते हैं, आदमियों पर ईमान रखते हैं। तो ईमान है, प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम गलत चीज पर ईमान है। द प्रॉब्लम इज टू बिलीव ऑन द रॉन्ग थिंग। गलत चीज पर ईमान। और मैं आपको एक बात सच बता दूं कि जो गलत चीज पर ईमान रखता है वो गलत चीज उसकी जिंदगी में मैनिफेस्ट, ज़हूर में आना शुरू हो जाती है। वॉट एवर यू विल बिलीव विल मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। जिस चीज पर आप ईमान रखते हैं। मैं किसी जगह मिसाल दे रहा था, मेरे एक दोस्त थे, हैं बड़े अच्छे मेरे भाई हैं, मेरे हम खिदमत हैं। कई साल पहले जब मेरी मुलाकात उनसे हुई, he was in a huge bondage। वो एक बड़ी गिरफ्त में थे, फाइनेंशियली बड़े डाउन,
बड़ी तंगी पस्त थाली के अंदर मेरा दिल किया मैं उनसे पूछूं कि प्रॉब्लम क्या है, हालांकि बड़े स्किल्ड हैं अपने स्पेसिफिक प्रोफेशन के अंदर। उन्होंने कहा भाई करते करते बातें, उन्होंने मुझे एक चर्च सर्विस के बारे में बताया। उन्होंने कहा वहां पर जो खादिम थे वो कलाम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खुदा मेरे दिल में डालता है कि फलां के लिए ये नबूवती कलाम है, खुदा की आवाज है। कहने लगे जब मेरी बारी आई, उसने कहा XYZ, जो भी मेरे दोस्त का नाम है, उसने कहा तेरे लिए खुदा कहता है कि अगर तू जॉब करेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा, अगर तू जॉब करेगा मैं तुझे मार डालूंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि तू फुल टाइम मिनिस्ट्री करे, तू पूरी तरह खिदमत करे, मुबशराना खिदमत करे और पूरी तरह करे, अपने दिन के 24 घंटे सिर्फ खुदावंद के लिए दे। और उसने इन द फ्लो ऑफ द मोमेंट आमीन कह दिया। अब उस कलाम का जो उस खादिम के मुंह से निकला हुआ था, इसने चूंकि आमीन कहा था, वो कलाम इसकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होना शुरू हो गया। अब इसकी नौकरी भी चले गई, जवाल आ गया, फाइनेंशियली ये नीचे से नीचे से नीचे, इसको कोई 10,000 पाकिस्तानी रुपयों की नौकरी नहीं मिलती, हालांकि बड़ा स्किल्ड है। अब जब वो मुझसे मिला, हम दोनों ने मिलकर दुआ की। मैंने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं इस कलाम को जो मनफी इसकी जिंदगी के लिए बोला गया है, मैं उसे रद्द करता हूं, कैंसिल करता हूं यीशु के नाम में। एंड द मोमेंट वी डिड इट, महीनों में उसे 50,000 रुपए की नौकरी मिल गई। और इस वक्त वो बंदा पूरी दुनिया की सैर करता है विद द सेम प्रोफेशन, बट इट मैनिफेस्टेड। मनफी कलाम, गलत चीज पर ईमान मैनिफेस्ट होता है, ज़हूर में आता है मनफी कलाम। ईमान की बात कर रहा हूं। आपने ये भी बात सुनी होगी, खुदा को डिग्रियों से कोई लेना देना नहीं है, खुदा को पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए। लो पूरी कौम अनपढ़ निकल आई जाए, पूरी कौम का बेड़ा गर्क हो रहा है। रीजन क्या है कि पुलपट पे से खड़े होके कमजोर कलाम किए गए हैं कि खुदा को डिग्री वाले लोग नहीं चाहिए, खुदा को चाहिए हैं, खुदा को पढ़े लिखे स्किल्ड लोग चाहिए हैं। हमने कहीं से सुन लिया था और हम ईमान ले आए, और आज हमारे बच्चे निकम्मे हैं। पादरी साहब कह रहे हैं दुआ करे कि पाकिस्तान तरक्की करे। जवाल का आलम यह है कि हमने गलत ईमान रखा है, गलत चीजों पर, गलत लोगों पर, गलत बातों पर। तो सारी बातों का आगाज होता है आपके ईमान से। लेकिन वो शख्स जो सच्चाई से वाकिफ है, वो गलत चीजों पर ईमान नहीं रखता, वो ठीक चीजों पर ईमान रखता है। लेकिन अब अगली बात करते हैं, वो ठीक चीजों पर ईमान तो रखता है, उसे पता है कि जिस खुदा की मैं इबादत करता हूं वो कादर मुतलक है, यीशु के नाम से उसके लिए चीजें होती जाती हैं। ये उसका ईमान है कि मेरे लिए सिर्फ यीशु काफी है, यीशु मेरे लिए काफी है, यीशु ही मेरे लिए काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रोटी कपड़ा मकान मैं किते क्या हो तो चूंगे च लभ जाएगा, चूंगा समझ दो। ग्रेबी में अरे भाई ऐसे ही ये ले, रोटी कपड़ा मकान दौलत शौहरत XYZ सारा कुछ मिल जाएगा। आयत नहीं पड़ी, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाहत और उसकी रास्तबाजी, तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, सारी चीजें मिल जाएंगी, चूंगे में ऐसे ही मिल जाएंगी। ईमान ठीक रखो, रास्तबाजी को थामे रखो। अब जब आप ठीक चीज पर ईमान रखते हैं तो आप दुनिया के लिए बेवकूफ साबित होते हैं। दुनिया में बहुत सारे अक्लमंद लोग हैं, वेरी वाइज पीपल। आप जब ईमान से चलते हैं वो आपको कहते हैं पास्टर दानिश ये क्या बेवकूफी कर रहे हैं या बेवकूफाना बातें करते हैं, ये कैसे मुमकिन है, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे अपना हाल तू देख,
ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ? ओ भाई तू अपना हाल वेख, अपना फैमिली बैकग्राउंड देख, ये दुनिया की आवाजें हैं, दुनिया भी कलाम कर रही है। व्हाट यू विल बिलीव, आप किस बात पर ईमान रखेंगे? दुनिया कह रही है तेरा ते मुंह भी चिपज है, तू सोना नहीं, तेरा फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं, तेरे को नहीं, तेरे को नहीं, तेरे को इंज नहीं। ये दुनिया कह रही है। अगर तू ईमान ले आए तो वो तेरे लिए हो जाएगा, लेकिन अगर तू रद्द करके, हां बेवकूफी को थामे रख, बेवकूफी को थामे रख। इफ यू बिलीव कि यीशु पर ईमान रखना बेवकूफी है तो है, लेकिन मैं आपको एक बात सच बताऊं, दुनिया में जिन लोगों ने तारीख रकम की है, दुनिया में जिन्होंने अपनी जिंदगी को वैल्यूएबल बनाया है, जिन्होंने दुनिया में कुछ कारनामा किया है, वो सारे ही बेवकूफ थे। They did stupid things. They did things which does not make sense for the world. दुनिया के लिए उनकी काम, उनकी बातें बेवकूफाना मालूम होती थी। डैनियल शेरों की मान में फेंका गया, उसके पास ऑप्शन था कि ईमान को जाने दे और शेरों से बच जाए, बट उसने बेवकूफी का कदम उठाया, ईमान को थामे रखा, शेरों की मांग में फेंका जाना कबूल कर रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ? दुनिया ने खुदा का करिश्मा देखा, शेरों के मुंह बंद हो गए, शेरों के मुंह बंद हो गए। सदरक, मिशक, अब्दुलनजू बेवकूफ तरीन दुनिया के लोग हैं, उन्हें ऑप्शन दिया गया अपना ईमान छोड़ दो, इस माबूद की इबादत करो, तीनों बच जाओगे। स्टूपिड पीपल विच वर स्टूपिड फॉर द वर्ल्ड, लोग कहते हैं बेवकूफ लोग हैं, ईमान को पकड़े हुए हैं, जान बचाओ। ओ भाई जान बचाओ, ईमान को क्या करना है, ईमान से रोटी थोड़ी आएगी। ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने आग में फेंका जाना कबूल किया, लेकिन ईमान को थामे रखा। फिर दुनिया ने करिश्मा देखा, कलाम में लिखा है 3 फेंके गए, उनको 4 दिखाई देते थे, और चौथे की शक्ल इलाजादे की मानंद दिखाई देती थी। आग जलती थी, देखने वाले बादशाह ने कहा ऐसा करो, आग को 7 के 70% बढ़ा दो, इग्नाइटेड मोर। उन्होंने बढ़ा दी, जंगल की लकड़ियां आई बिलीव खत्म हो गई होंगी, लेकिन हुआ क्या, वो आग उन्हें जला ना पाती थी। लोगों ने करिश्मा देखा जब ईमानदार कायम हो गए अपने ईमान पर। करिश्मे लोगों ने देखे। एक कहानी पढ़ लीजिएगा घर पर जाके, पहला सलातीन। एलिया जब खड़ा हुआ बाल के पुजारियों के साथ, बाल के नबियों के साथ कंपटीशन छेड़ बैठा है, बोला आज पता चलेगा हु सर्व द रियल गॉड, कौन ठीक खुदा की इबादत करता है, किसका खुदा सच्चा है। कंपटीशन क्या हुआ, उसे कहा ऐसा करो, मैं भी बैल लाता हूं, तुम भी बैल लाओ, तुम अपना ऑल्टर सजाओ, मैं अपना ऑल्टर सजाऊंगा, और तुम अपने देवता बाल से कहना कि वो आसमान से आग नाजिल करे और इस कुर्बानी को चट कर ले, और मैं भी इस्राएल के खुदा से दुआ करूंगा कि वो भी आसमान खोले और आग को नाजिल करे, एंड वी विल सी हु सर्व द रियल गॉड। हुआ क्या है, बाल के जो नबी थे, दे वर वेरी वाइज पीपल, अक्लमंद लोग थे। उन्होंने बोला बाल यार देखो मसला को नहीं, देवता भाई कई सारे लोग जिन्हें कोई हुंदे कोई नहीं, उन्होंने फूफा बड़ी हुंदी है ना, उन्होंने दिया भी फूफा ने कहा मसला ही कोई नहीं, ले आओ भाई। ऑल्टर बनाया, बैल उसके ऊपर रखा, उसके चौगिर्द दुआएं करने लगे, अपनी दुआएं करने शुरू कर दी, और कर रहे हैं और नाच रहे हैं और बाल के लिए गा रहे हैं, एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग कि आसमान से आग किसी तरीके नाजिल हो जाए, कि बाल इनकी कुर्बानी को कबूल कर ले, कि बाल खुश हो जाए, बाल कर दे। मैंने कहा ईमान है, लेकिन सारे चर्च ने नहीं सब गल सुनी, ईमान है लेकिन
गलत चीज पर है, उनका था ईमान। अरे भाई, बाइबल कह रही है सलातीन की किताब में दैट दे वर दी प्रॉफिट्स। प्रॉफिट का टाइटल भी था। कई सारे टाइटल वाले भी ठीक नहीं होंगे। वो पादरी भी आज ना जिन्हें मेरे दोस्त ने बहुत की थी, दे वर प्रॉफिट्स। और क्या लिखा है कि वो नाचते हुए डांस कर रहे हैं अपनी कुर्बानी के चौगिर्द के, किसी तरीके आग लग जाए, नहीं लगी। एलिया आई बिलीव थोड़ा सा ह्यूमरस था, मजाकिया सी। उन्होंने जुगत मारी, कह रहा है लगता है तुम्हारा जो देवता है कहीं ट्रिप मारने के लिए गया हुआ है। He is on trip, में भी वो सैर कर रहा होगा, मुसाफरत में होगा, तो रुकेगा तो तुम्हारी सुन लेगा। वरना ऐसा करो, ऐसा ना हो कि वो सोया हो। भाई ज्यादा जोर से बोलो, शोर पाओ, ज्यादा जोर से बोलो ताकि वो तुम्हारी सुन ले। ये ज्यादा अकलमंद है ना, क्या ठीक कह रहा है। कलाम में लिखा है वो और शोर मचाने लगे, उन्होंने और चीख चीख कर दुआएं शुरू कर दी और जोर से नाचने लगे, लेकिन आग नाजिल नहीं हुई। उसने कहा बस 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 करो, तुमसे ना हो पाएगा, अब मुझे देखो। दिस मैन एलिजा, एलिया के पास ईमान भी था, ये सच्चाई से वाकिफ भी था और इसकी रूह आजाद थी। ये ईमानदार था, ये सच्चाई से वाकिफ था कि खुदा है तो सिर्फ इस्राएल का खुदा है, और ये आजाद रूह भी था। इसे कहा सी हाउ आई डू इट। हुंदा है जो ईमानदार आकर जाए बोले मुझे देखो मैं कैसे करता हूं। भाई पौलुस क्या कहता है? कहता है मेरे पीछे चलो जैसे मैं यीशु के पीछे। क्या आज का क्रिश्चियन ऐसा है जो किसी को तो छोड़े, अपने बच्चों को ये कह सके कि बेटा वैसे करो जैसे मैं करता हूं? आप इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं, आप इतने ईमान में स्ट्रॉन्ग है कि अपने बच्चे को चर्च ਨੂੰ ਛੱਡ दो। अपनी औलाद को आप बोल सके बेटे जैसा तेरा बाप जिंदगी गुजार रहा है वैसी जिंदगी गुजार, जैसा तेरा बाप ईमान में कायम है। पौलुस कहता है मेरे पीछे चलो जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूं। अब सुनिए क्या हुआ। एलिया खड़ा हुआ है। एलिया ने कहा, मुझे ये बेवकूफ समझते हैं, एलिया ने अब्राहम की बरकत को याद रखा। उसने कहा 12 कबीले 12 पत्थर लगाओ। गड्ढा खोदा, 12 पत्थर लगाए। दुनिया के लिए बेवकूफ मालूम होता है। उसके ऊपर लकड़ियां रखी, उसके ऊपर बैल रख दिया, ऑल्टर बनाया, ऑल्टर के ऊपर बैल रखा, और अब वक्त है कि ये भी दुआ करे अपने खुदा से। वक्त आ गया है। अब मैं ये सोचता हूं पहला काम इसने जो कहा वो था कि आसमान खुलेगा और आग नाजिल होगी। क्या आसमान से कभी किसी ने आग नाजिल होते हुए देखी? क्या देखा है हमने? पानी बरसता है। ये बेवकूफाना बात करता है, मेक्स नो सेंस। भाई आसमान से पानी बरसता है, ये कहता है आग बरसेगी। मेक्स नो सेंस। नेचर के, कुदरत के ऑपोजिट बात कर रहा है कि आसमान से आज पानी नहीं आग बरसेगी। और आग दूसरा ऑपोजिट द नेचर काम। इसने कहा ऑल्टर अभी भी मजा नहीं आता, एक और काम करो, ऑल्टर पर पानी डालो। इसे कहा ब्रिंग सम वाटर। उन्होंने सुनाई देता ब्रिंग अ लॉट ऑफ वाटर। ओ वाह सारा पानी लाए, वाह पानी पा देता, पानी डाला। इससे बोला अभी भी काफी नहीं है, सिर्फ लकड़ियां भीगी हैं, पत्थरों, ये जो 12 पत्थर है इन्हें भी भिगो, और पानी डाला, ये भी काफी नहीं है। इतना पानी डाल दिया कि वो खड्डा जो उन्होंने बनाया वो पानी से भर गया, लकड़ियां गीली हो गई, पानी से भर गई, बैल जो ऊपर कुर्बानी के लिए पड़ा है वो भीग चुका है, सारा कुछ पानी पानी हो गया। दूसरा काम इसने ऑपोजिट द नेचर किया कि गीली लकड़ियां आग पकड़ेंगी, पानी की जगह आग, नीचे
सूखी नहीं गीली लकड़ी को आग लगा रहा है, ऑपोजिट द नेचर जाके। ईमानदारों के लिए ये बातें करना आम सी बात है, गोया दुनिया के लिए ये बेवकूफी है। इट्स इम्पॉसिबल। साइंस कहती है आसमान से सिर्फ पानी बरसता है, आबी बुखरात ऊपर जाते हैं, पानी नीचे आता है, सारों को पता है। लेकिन ये कहता है आग बरसने वाली है, आसमान की तरफ आंखें उठा के कहता है खुदा तुझे इस्राएल का, अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है, आज अपनी कुदरत को नाजिल कर, ताकि ये सारे जो मुझे देखते हैं जान लें कि इस्राएल में सिर्फ एक ही खुदा है। The moment he prayed that prayer, आसमान खुला, सारे मजमे ने देखा 450 बाल के नबी वहां खड़े हुए थे, इस्राएल के आम लोग वहां खड़े हुए थे। इन सारों ने आसमान को खुलते हुए, आसमान पर से आग नाज़िल होते हुए और उस कुर्बानी को चट करते हुए अपनी आंखों से देखा। हालेलुया। ऑपोजिट द नेचर। मैं अपनी बात बताता हूं। इस वक्त जो कराची में हमारा टेलीविजन ऑफिस है, जहां पे पादरी साहब आए हैं, जब कोविड बहुत हाई पीक पर था, हम किराए की बिल्डिंग में हमारा दफ्तर था, लेकिन जब कोविड पीक पर था सारी दुनिया जॉबलेस हो रही थी, सारों के हालात बुरे, हमारे अपने बुरे थे। हमने कहा खुदावंद तू हमें ये कहता है मैं तुम्हारी हदूद बढ़ाने को, इतने थे जड़े को 2-4 पार्टनर्स है ना, वो भी कह रहे हैं भाई हम सपोर्ट नहीं कर सकते। हाउ विल डू इट। उन दिनों में जब कोविड बिल्कुल पीक पर था, एक शख्स मेरे पास आया 3 फ्लोर की बिल्डिंग हाथ में लेके। उसे बोला पास्टर साहब ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है जो मैं आपके मिनिस्ट्री ऑफिस के लिए आपको गिफ्ट करना चाहता हूं। ड्यूरिंग द कोविड, ड्यूरिंग द पीक टाइम ऑफ कोविड-19 हमने वहां पर बिल्डिंग खड़ी कर दी, वो स्टार्ट हो गया, टेलीविजन, ये वो सारा कुछ। हाउ इज इट इवन पॉसिबल। ईमान में कायम, सच्चाई से वाकिफ। क्या? ईमान में कायम, सच्चाई से वाकिफ और आजाद रूह। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में कुछ किया और फर्क पैदा किया है। मेरी बहनों और भाइयों, मैं एक दिन स्ट्रेस में था, हमने कोई प्रोजेक्ट करना था। पाल साहब को पता है हम बहुत सारा काम मिशंस पर करते हैं। अ पार्ट ऑफ जस्ट बीइंग अ टेलीविजन मिनिस्ट्री, जो हमारा की फोकस है वो अक़वाम आलम है, अनरीच्ड पीपल ग्रुप्स है। हमारा एक प्रोजेक्ट था जिसके लिए सर्टेन अमाउंट हमें चाहिए थी। वी वर वेरी वरिड। मेरी उम्र 32 साल है, 32, ये जून में हुआ हूं, कोई ज्यादा बूढ़ा नहीं हूं। 32 साल का मुंडा, हाई ब्लड प्रेशर। मैं क्या छेती मार जाएगा की करना है। You're just 32, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस इतना ज्यादा मैंने सर पर ले लिया, इतना परेशान हो गया, बैठा हुआ हूं एंड द लॉर्ड स्टार्टेड टू स्पीक टू मी। खुदा मुझसे कलाम करने लगा मेरे दिल में। उसने कहा दानिश, ये बिल्डिंग वाली बात उसने याद कराई। याद कर, कोविड के अंदर जब दुनिया अपने लिए चावल के दाने ढूंढ रही थी, मैंने उस वक्त तेरे लिए बिल्डिंग तामीर की। तू वो दिन याद कर जब तूने पहली दफा 2010 में इंजील सुनाई थी। क्या तेरे पास कुछ था? तू काबिल था? नो लॉर्ड, ना काबिल हूं, ना फैमिली बैकग्राउंड है, ना कोई बड़े किसी मुल्क की सिटीजनशिप है। आई हैव नथिंग। उसे कहा याद कर, तू हॉस्पिटल में था, डॉक्टर की रिपोर्ट आई थी दैट ही इज मेडिकली डिक्लेयर्ड डेड। मेरा हाथ 2 टुकड़े में कट गया था। मेरे दिल में लोगों के 3 आर्टरीज होती है, मेरी एक कटी हुई है। मेरे हाथ के फ्लेक्सर्स, बोन्स, एवरीथिंग ये 2 टुकड़ों में था जब मैं से उठा के हॉस्पिटल गया। खुदा ने कहा तूने तो अपनी जिंदगी की आखिरी दुआ कर ली थी, लेकिन क्या मैंने तुझे मरने दिया? नहीं। उसने कहा अगर मैं कल तेरे साथ वफादार था, मैं आज भी तेरे साथ वफादार हूं और मैं तेरी सारी उम्र तेरे साथ वफादार रहूंगा। ईमान में कायम हो, सच्चाई से वाकिफ हो, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। हालेलुया। द मोमेंट ही सेड, सारा स्ट्रेस ऐसा मेरे ऊपर से उतर गया।
میری بہن میرے بھائی, میں آج 2 للکار دے کر اس پیغام کا اختتام کرنا چاہتا ہوں. 2 things, یہ چیلنجز ہیں جو میں چرچ کو دیتا ہوں یا دینا چاہتا ہوں in this very moment. یسوع کے پاس جب اس کے شاگرد آئے بھاگتے ہوئے, کہنے لگے یسوع تیرے نام سے بدروئے ہمارے تابع ہیں, تیرے نام سے ہم مردے زندہ کر رہے ہیں, لنگڑے چلا رہے ہیں, اندھوں کو آنکھیں دے رہے ہیں, بہرے سن رہے ہیں, ہم تیرے نام سے دعائیں کرتے ہیں. یسوع نے کہا ہولڈ آن, ڈو ناٹ بی ایکسائٹڈ. جب تم وہاں پر معجزے کر رہے تھے, میں تمہارے لیے دعا کر رہا تھا, اور دعا اس لیے کر رہا تھا تاکہ تمہارا ایمان جاتا نہ رہے. The biggest concern of God for your life, کہ تیرا ایمان نہ جائے. روٹی کپڑے مکان کے چکر میں ایمان گوا نہ دینا, تیرا ایمان نہ جاتا رہے. تو اپنے ایمان کی کشتی اچھی لڑ. اس نے کہا تیرے لیے دعا کی تاکہ تیرا ایمان نہ جائے. اگلی بات کہتا ہے اور جب میں نے یہ دعا کی, میں نے دیکھا کہ ابلیس آسمان پر سے زمین پر گرا ہے بجلی کی مانند منہ کے بل. لیکن تب جب تیرا ایمان ٹھہرا رہا, تیری زندگی میں تیرے سامنے کے جو جاتی جولیت تھے وہ تبھی گریں گے جب تو ایمان پر قائم رہے گا. تیرے لیے ابلیس منہ کے بل تبھی گرے گا جب تو ایمان میں قائم رہے گا. اس نے کہا یہ ایمان میں قائم رہے, ایمان میں قائم رہے. کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ابلیس بجلی کی مانند زمین پر گر پڑا. میری بہن بھائی, there is no day in your life. دنیا میں آج سوچے ذرا, تصور کریں, پاکستان تو سمجھ میں آتا ہے کہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے. USA یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ڈیٹ میں ہے, اس کے ڈیفالٹ ہونے کی خبریں نیوز میں چل رہی ہیں. دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اکانومی کین کریش, انفلیشن کہیں پر بھی آ سکتی ہے. It has nothing to do with us. میں اپنے لیے ڈکلیئر کرتا ہوں کہ خداوند میں, میرے بچے, میں, میرا گھرانہ کبھی بھوکے نہیں رہیں گے. آپ اپنے لیے کریں. You can do this for yourself. دنیا کی اکانومی سے ہمیں کیا لگے, we depend on the pocket of our Father in heaven. ہم اپنے آسمانی باپ کی جیب کو دیکھ کر کام کرتے ہیں, اپنی جیب کی نہیں. دنیا کی اکانومی, ورلڈ بینک مر جائے, گر جائے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. We will still see the prosperity. کسی نے کہا دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل, منادی کر رہا تھا بھائی میرا کہ دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے. میں کہ کاش کہ تو نے اس کے حقیقی متن میں سے پڑھ لیا ہوتا کہ کس سوئی اور کس ناکے کی بات کی جاتی ہے, کہ کون خدا کی بادشاہت میں داخل نہ ہو پائے گا. تصور کریں کہ جب چرچ کو یہ بتایا جائے کہ خدا چاہتا ہے کہ غریب ہو, غریب بنو, کیونکہ غریب خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں گے. It's sad. یہ دکھ کی بات ہے. God wants to prosper you. God wants to bless you abundantly and exceedingly. آپ کی سوچوں اور خیالوں سے بڑھ کے خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. وہ مجھے خدا نے پچھلے دنوں کسی جگہ کے لیے کلام دیا, to go and possess the land. میں ہر روز اپنے لیے یہ دعا کرتا رہا ہوں, میں اس کی مینیفیسٹیشن دیکھ رہا ہوں. زبور 2, اس نے کہا تو میرا بیٹا ہے. زبور 2 میں لکھا ہے 7ویں 8ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں آیت میں, اس نے کہا تو میرا بیٹا ہے, تو مجھ سے مانگ, میں قوموں کو تیری میراث کے لیے, زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے دے دوں گا. ہیلیلویا. یہ خدا کے وعدے ہیں. میں کس پہ بلیو کروں, کس پر ایمان رکھوں بابا, کس پر؟ وہ جو مجھے یہ بتاتا ہے کہ تو غریب ہو, یا اس پر جو مجھے کہتا ہے کہ تو خوب بڑھ؟ جس بات پر بھی آپ ایمان لے آئیں گے وہ آپ کے لیے ہوتی. آج ایک کلیہ, ایک ٹپ دے کے جا رہا ہوں, ایک طریقہ روحانی دے کے جا رہا ہوں, اسے تھامے رکھیے گا. جیڑی گل تے لگے نا سمجھ چاندی, انہوں پھاڑ لو, انہوں پھاڑ لو. اور جیڑی گل آپ کی زندگی کے لیے کچی پکی ہو اسے جانے دیں. Listen to this. ہر بات آپ کے لیے نہیں ہے.
हर बात आपके लिए नहीं है, हर प्रॉफिट आपके लिए नहीं है, हर नबी आपके लिए नहीं है। वो भी नबी थे बाल के जो पुजारी थे, बाइबल उन्हें नबी कह रही है, मैं कौन होता हूं कहने वाला, बाइबल उन्हें कहती है कि वो नबी थे। लेकिन वहां पर एक ही नबी था जिसका नाम एलिया था, was the real prophet। तो चैलेंज आपके लिए आज ये है कि आप अपने ईमान की दौड़ कैसे दौड़ेंगे, आप किस तरह की जिंदगी चाहते हैं, किस तरह की मैनिफेस्टेशंस देखना चाहते हैं, कैसे चाहते हैं कि आसमान इस जमीन पर आपकी जिंदगी में किस तरह, किस सूरत में ज़हूर में आए। जैसे आप चाहते हैं वैसे ही आपके लिए होता चला जाएगा। आखिरी बात कह रहा हूं, देन विल प्रे। कलाम में लिखा है जो शरीयत को मानता है उसका इंसाफ भी शरीयत के मातहत होगा। Whoever is a believer of law, he'll be judged according to the law। लेकिन जो फजल में जिंदगी गुजारता है उसका इंसाफ भी फजल के मातहत होगा। जो कि मेरे लिए ये है कि जैसा मैं हूं, जैसी मेरी तदबीरें हैं, ख्यालात हैं, वैसा ही मेरे लिए होता चला जाएगा। आज आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए क्या हो, किस तरह की जिंदगी का चुनाव आप करेंगे, किस तरह के ईमान में आप कायम रहेंगे। यसू पर ईमान रख के उस सच्चाई से वाकिफ होकर आजाद रूह रखें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। And let's pray for a moment। अगर मेरे भाई सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझे कीबोर्ड पे ज्वाइन करें। I just want to spend 2 minutes of prayer with you all। आओ बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, दोस्तों, नौजवानों, अपनी आंखों को बंद कर लें। And for next 2 or 3 minutes, कुछ और नहीं, आओ सच्चाई को देखना शुरू करें, सच्चाई को देखना शुरू करें। Look upon the truth। आप सिर्फ सच्चाई सुनते नहीं, आप सच्चाई को जानते हैं, सच्चाई से वाकिफ हैं। You possess the सच्चाई। भाई, सच्चाई को थामे हुए हैं आप। कहिए खुदावंद, आज मैं आसमान को अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट होते हुए देखना चाहता हूं। ओह, दुनिया मुझे क्या बता रही है, I don't care about it Lord। ओह, मुझे इस वक्त इस बात की फिक्र है कि खुदावंद तू मेरे बारे में क्या कहता है। तूने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। मैं कौमों को तेरी मरास के लिए, जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे दे दूंगा। खुदावंद तूने मुझसे कहा है कि मैं सारी हालातों को, सारी चीजें मिलकर तेरे लिए भलाई पैदा करेंगी। तूने मुझसे कहा है। आप अपने लिए कहें ये बात। खुदावंद के वादे आपके लिए ईमान का सबब बनेंगे। ईमान है, आओ उसे सही चीजों पर रखें, उसे सच्चाई पर रखें। Believe on the truth, truth which is not found in the world। दुनिया में नहीं है, लोगों में नहीं है, साइंस और टेक्नोलॉजी में नहीं है, मीडिया में नहीं है, इकोनॉमी में नहीं है, गवर्नमेंट्स में नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है। सच्चाई सिर्फ खुदा के बेटे यीशु में है। हमारे लिए कलाम में लिखा है, मैंने जो आयत पढ़ी है, उसने कहा वो सारे यहूदी जिन्होंने ईमान, इसका मतलब सारों ने ईमान भी नहीं रखा, लेकिन जिन्होंने ईमान रखा उनके लिए ये बात सादर है, सच है, हक है कि वो जो ईमान ले आए, सच्चाई से वाकिफ हुए, वो आजाद भी किए गए हैं। सारे नहीं भाई, सारे नहीं। इसीलिए तो कोई चर्च में आते हुए भी कहता है, ओ पादरी साहब 10 साल हो गए, हालात कोई नहीं बदल दे। रीजन ये है कि भाई 10 साल से तू चर्च में आ रहा है, क्या तू सच्चाई में भी कायम हुआ है? चर्च में आना किस बात की टिकट नहीं है that you will be blessed। ब्लेस करने वाला यीशु है, बरकतों को नाज़िल फरमाने वाला, बरकत का हाथ आपके सर पे रखने वाला वो यीशु है। यीशु को देखें, आओ यीशु को देखें। राबो शेंडे रे बाटा कांडाला रामा सोप्रेटे ले ब्रेकाटे ने 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 बेले रेबे प्यो ब्रेया साक्रामांडे इंडोलो रोबो शेटेडे प्यालबा रामा देखे तेरे बे सोप्लेटे रोबो सोप लाथा काटारा ने ने
Rende de beatolo boroshe tramane. Rebato ko borose trele remende. Hople kare tebe de ramasala raba. हम सारे जानते हैं खुदा का ये वो बरा है जिसकी रान पर लिखा है कि ये बादशाहों का बादशाह है, ये खुदावंदों का खुदावंद है। लेकिन सुनो मेरी बहन, ओ मेरे भाई सुन, ये जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है, क्या वो तेरी जिंदगी का बादशाह है? क्या वो तेरी जिंदगी का खुदावंद है? जमाने का तो वो है, क्या वो तेरा है? अगर वो तेरा है तो मैं तुझसे सवाल करता हूं कि क्या तूने इस बादशाह को अपनी जिंदगी पर राज करने दिया है? क्या तूने इस खुदावंत को अपनी जिंदगी का खुदा होने दिया है? या तू अपनी दौड़ दौड़ रहा है, अपनी मेहनत पर इंसार किए हुए है? तेरी ताकत खत्म हो जाएगी, ओए उम्र तेरे बाल चट कर जाएगी, तेरी हड्डियां गल जाएंगी, तू कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी जिंदगी को देखता हूं, मेरी आंखें भर आती हैं। मुझ जैसे निकम्मे, नकारा, टूटे बर्तन, रिलेशनशिप जिसके फेल हो गए। मैं यूनिवर्सिटी क्विट करके बैठ गया, इंटर पास। हाउ गॉड कैन ब्लेस मी। उसने कहा ये तेरी वजह से नहीं है। सुन भाई सुन, तू अगर मुश्किल में है सुन ले, तेरी बरकतें तेरी अकल की वजह से नहीं है, तेरी वजह से नहीं है। तू यीशु को देखना शुरू कर दे, तू बस कदम बढ़ा, यीशु तुझे बरकत देगा, यीशु तुझे संभाल लेगा। तेरी रूहानी आजादी के लिए तुझे कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं, यीशु के पास आ, उसके सामने अपना सर खम कर, सजदे कर, उसके पैरों को चूम। यीशु 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 ही तेरी जिंदगी का मरकज बन जाए, तू आजाद हो जाएगा। You'll be free। तुझे फर्क नहीं पड़ेगा इकोनॉमी क्या है। तू जब दुनिया बैंकरप्सी में जा रही होगी, खुदा तुझे सरफराज कर रहा होगा। और रिसीव इट, इसे कबूल करे। खुदावन तू मुझे बढ़ाएगा हालातों से बढ़ के, वाकयात से बढ़ के। चर्च में आपके लिए कलाम करने लगा हूं, अपने हाथों को बुलंद करें, इस कलाम को कबूल करें अपनी जिंदगी के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हालात कैसे हैं, आप में से हर एक बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा यीशु के नाम में। दुनिया कहेगी काल पड़ी हुई है, आप उन दिनों में आसूदगी को देखते होंगे। लोग पांच होंगे, दुनिया जमाना चीख रहा होगा, लेकिन आप साहिब औलाद होंगे। दुनिया बीमारियां देख रही होगी, लेकिन आप उन बीमारियों के अंदर खुदा की कुदरत को, उसकी कुदरत के कामों को देखते होंगे यीशु के नाम में। शत्राबा का ठेले रे में मैं कलाम जारी करता हूं आपके लिए। आप खूब बरकत होंगे, आप खूब सरफराज होंगे। ना सिर्फ आप, आपकी नस्लें सरफराज होंगी यीशु। अरे मेरे भाई जो यहां बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं मेरी सैलरी भाई बहुत कम है, मैं पता नहीं क्यों ये बात कर रहा हूं, मैं करने लगा हूं। आप ये कहेंगे भाई मेरी सैलरी बड़ी कम है। सुन, ये तेरे लिए मेरे भाई मेरी बहन, तेरा आगाज छोटा है, लेकिन खुदा तेरे अंजाम को बहुत बड़ा कर देगा। ईमान में कायम रह। शाठा कारे ले रे बेसेंडे दे रामा नामा शोबले खेटे रे बेदे रेटे दे 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 ले ले का सोपरे था मारे रे बेकंडे का बोरो शेतले रे बे राबा साबरा का ताराबाला। तेरे घर में तेरी बीवी बहते हुए उन जहाजों की मानद होंगी जो तिजारत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तेरी बीवी तेरे घर में मेवादार दरख्त होगी मेरे भाई। बीवियों के लिए उनके शौहर खुदा से प्यार करने वाले, खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारने वाले हो। ये चर्च, इस चर्च का हर एक नौजवान अंदर आने वाला बाबरकत होगा और बाहर जाने वाला भी बाबरकत होगा। ओ
मैं आपकी कलीसिया के लिए एक कलाम जारी करता हूँ। शोप्रे काठेले रे बेले रे बेले रांडे के तालामो सोब लेटा लाप्रोकोबो शेले रे बे। ये चर्च बढ़ता जाएगा, ये चर्च खूब बढ़ेगा, ये चर्च इस खित्ते में, मिडिल ईस्ट के अंदर, this church will continue to rise and continue to shine in Jesus name. रेमा थकरे बाला रामासो। अरे आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ने का, आप प्रॉस्पेरिटी के लिए बुलाए गए हैं। तेरी औलाद, तू देख रहा है, तू कहता है मेरे बच्चे फर्मा बरदार नहीं है, मैं क्या करूं? सुन, तेरे लिए सच्चाई से वाकिफ हो जा। वो सच्चाई तेरे बच्चों को आजाद कर देगी। मैं कह रहा हूं, ना सिर्फ तू बल्कि तेरी नस्लें भी बाबरकत होंगी। खुदावंद, मैं अपने हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए, बच्चों और बुजुर्गों के लिए, पास्टर हेनरी के लिए, अपनी बहन के लिए, इनकी औलाद के लिए, इस चर्च के लिए, सारी कांग्रीगेशन के लिए बरकत की दुआ करता हूं। खुदावंद, दे आर योर पीपल। खुदावंद, मैं ये दुआ करता हूं कि इनकी सारी उम्र तू इनका खुदा रहे और ये तेरे लोग रहे, और दुनिया में ना कोई मर्द, ना कोई औरत, ना कोई रूह, ना कोई हालात, ना कोई जज्बे कभी भी ये अहलियत रखे कि इन्हें रोका जाए। ये हालातों से बढ़ के, लोगों की बातों और नजरों से बढ़ के ये खूब सरबुलंद हो, सरफराज हो, कामयाब हो। Let your glory be manifested in their life. मैं ये बरकत इस सारी कांग्रीगेशन के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम में डिक्लेयर करता हूं। सारे मिलके बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाएं। हालेलुया, हालेलुया।